My dear students, welcome to my channel, Education, Era and Amusement. The sentence related to direct and indirect speech, a grammar topic. Some of colon insist me to give a lecture related to direct and indirect speech. It is also called narrations. Now we start the topic direct and indirect speech. I will make you clear about this topic, that direct and indirect speech. It is also called narration. The sentences beginning with let. लेट से संबंधित जो भी सेंटेंसेस हैं, ये किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किए जाएंगे. हाउ विल चेंज a sentence given in direct speech into the indirect speech. So I make you clear all the things, all the steps about this. Some of senior classes, some of the students of senior classes insist me to give a lecture, to give explanation a topic of direct and indirect speech. So it is hard. Let, use of let. Change the sentence beginning with let. I will make you clear. There are three types of condition given. Three types of these sentences are: first, suggestions. Proposal. First, second type, allow, order, request, persuade, etc. Third type, condition, supposition. Three types of, mainly or mostly three types of sentence are given in the question paper, both question paper. In both classes, to convert the sentence given in direct speech into indirect speech. So you have to understand which sentence is given three of the odd. तीनों में से कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है, ये आपको पहचानना आवश्यक है. If you do not able to identify the three sentences, which one is given, then
you do it wrong. You will do it wrong. So firstly, you should have to identify. You have to identify the sentences, which one is given in the exam, in the paper, in which we are going to solve. So first, suggestion, proposal. Second, allow, order, request, suggestion, सुझाव. If in the sentence a suggestion is given to you, to someone, or a proposal to someone, then how will you transport? How will you convert? How will you change the sentence given direct speech into indirect speech? You have to identify if proposal is given in the sentence or suggestion is given in the sentence, then you will change according to the rule of the direct indirect speech. Then comes allow. Let him go. Allow. Order. यदि order, request, persuade, राजी करना, तो allow, अनुमति. अनुमति का वाक्य किस प्रकार से चेंज किया जाएगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में? I will make you clear everything. I will make you clear everything about allow, order, request, persuade, और motivation. मोटिवेशन का वाक्य हो. यदि अलाउ हो किसी वाक्य में, अनुमति दी हो, लेट हिम गो. ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, लेट मी स्टे हियर. द beggar said, let me stay here. It means request, persuade, किसी की सहमति प्राप्त करना, राजी करना, मोटिवेशन, प्रेरणा देना. इस तरह के जो सेंटेंसेस हों, आपको मैं बाकायदा इलस्ट्रेशन के द्वारा हर एक जो सेंटेंस है उस पर 2-2, 3-3 सेंटेंस दूंगा. वो आपको क्लियर कर देंगे किससे संबंधित है. ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड है, सेकंड टाइप का है, और थर्ड टाइप का कंडीशन और सपोजिशन, कल्पना और अनुमान. थर्ड का ये है. इसका हुआ आदेश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रार्थना का वाक्य है. परसुएड, राजी करना, सहमत करना. तीसरा मोटिवेशन, प्रेरणा. प्रेरणा से संबंधित यदि वाक्य है तो हाउ दे विल कन्वर्ट into direct speech from direct sentence. But you are advised not to miss my program, my lesson. You have to follow. You should follow. You must follow my each lesson. Follow my. You are requested to follow my channel. Don't miss any lesson. I request you not to miss any lesson. Understand? And subscribe it, as well as like and share it also. I request you. It needs hard work to prepare lessons. And it is sure I will make you everything clear. I will, not I shall.
अभी एक कॉलर ने पूछा शेल क्यों साहब, शेल आता है आईबी के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट में शेल का प्रयोग किया जाता है, शेल क्लियर, बट आई विल क्लियर, आई मेक ए प्रॉमिस विद यू दैट आई विल क्लियर एवरीथिंग। कुछ बच्चों ने ये आग्रह किया था, कॉलर ने आग्रह किया था कि आप डायरेक्ट बताओ और लैट का हमें बताओ, लैट थोड़ा मुश्किल है, it is hard, but it is not too much hard. Nothing is too much hard. It is hard rather than other. It is hard. The use of let in direct speech is light and hard than that of the other operative sentences, exclamatory sentences, imperative sentences, interrogative sentences. Therefore, but these are examination days, exams are going on. Therefore, they insist me. So I took this lesson to teach you. Every topic of grammar will be taught to you on this channel. They may be direct, indirect, direct and indirect speech, active, passive, passive voice, take questions, clauses, synthesis, transformation of sentences, transformation of sentences, articles, prepositions. Every topic will be taught here in grammar. Understand? Direct, indirect, active, passive. Object becomes subject, subject becomes object, and always third form is used. Third form of use, verb. Third form is used always. Always third form of verb used in passive voice. Take question. A statement is given and put a question on that statement. If the statement is given negative, take will be go. Take goes into positive. If given statement is positive, take will be negative, and given statement is negative, then will be positive. जैसे कोई आया, बाहर वर्षा हो रही है, it is a statement. It is raining. Is it raining? It is raining outside. It is raining outside. बाहर से तुम अंदर आए, मैंने पूछा इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसंट इट, क्या नहीं हो रही है, नेगेटिव आएगा. क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, जबकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव. हिंदी में भी हम कहते हैं जब क्या तुमने खाना खा लिया, क्या नहीं खाया, क्या खा लिया नहीं होता, क्या नहीं खाया. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन with the help of verb, given helping verb. It depends on the helping verb. Take question. मैं आपको क्लियर करूंगा जब इस टॉपिक पर आएंगे.
एक एक करके सारे ग्रामर के टॉपिक क्या प्रिपोजिशन क्या है ये सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन डोंट मिस एनी वन ऑफ देम, डोंट मिस एनी वन ऑफ देम। यदि मिस कर देंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, बीच में दिक्कत आ जाएगी। जैसे छोटी क्लास हो, आर्टिकल्स है, प्रिपोजिशन है, छोटी क्लास, अब तो बड़ी क्लास है, क्यों बोर्ड की परीक्षा चल रही, इसलिए उन्होंने से आग्रह किया था कि एक लेसन डायरेक्ट पर करो लेट वाला, वो हमें कम समझ में आता, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं मेरे चैनल पर इंग्लिश में ग्रामर में नथिंग विल बी लेफ्ट, कोई टॉपिक, नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड, नो प्रॉब्लम विल बी लेफ्ट अनसोल्व्ड, आई प्रॉमिस। But please watch my channel continue. I request you to watch my channel continue. Active passive, take question, clauses, synthesize, or transformation, modals, even modals, every topic will be taught to you by me, definitely with easy method. So please follow my channel. I again request you to follow my channel. You are advised to follow my channel. Now we take some sentence on let, with beginning with let. Let us go for a walk. Let us go for a walk. ये सेंटेंसेस है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये किस कंडीशन, थ्री कंडीशंस तो आपको बताई, जिसमें कौन सी कंडीशन है। लेट अस गो फॉर ए वॉक, क्या किसको अनुमति दी गई है, क्या कोई कल्पना की गई है, इस सेंटेंस में सुझाव दिया गया है, प्रस्ताव रखा गया है, प्रेरणा दी गई है, क्या है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसमें एक सजेशन दिया है कि हमें अब घूमने के लिए चलेंगे, घूमने चलना चाहिए, चलेंगे। तो यहां क्या करेंगे हम, सेट टू के जगह लाएंगे सजेशन, सजेस्टेड, पास्ट टेंस है, सजेस्टेड, ही सजेस्टेड टू मी, टू जो का ही रहने देंगे। प्रपोज के साथ आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, दोनों है। ही प्रपोज्ड मी, इट इज आल्सो करेक्ट। ही प्रपोज्ड टू मी, ये भी आप कर सकते हैं, कई ग्रामर में है ये। ही सजेस्टेड टू मी। अब ये जब सजेशन का वाक्य, पहली कंडीशन का वाक्य आता है तो हम किसे जोड़ते हैं, दैट से। जब सुझाव हो, प्रस्ताव हो, तो कनेक्टेड वर्ड क्या होगा, वो वर्ड होगा दैट। और हम क्या करेंगे, शुड, चाहिए, हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। वर्ड के बाद में शुड करेंगे, वर्ड से पहले शुड लगाए, शुड गो, शुड वॉक, शुड टेक। इससे हम वर्ड से पहले शुड को स्थान देंगे और दैट कनेक्टिव होगा। रिमूव inverted commas and write that replacing inverted commas। ठीक है, तो he suggested to me that, से जोड़ दिया, आपको बता दिया ये पहली जो कंडीशन उसका वाक्य है, सुझाव का, प्रस्ताव का। तो he suggested to me that we, me है मुझे का, तो we आएगा, we should go, हमें we should go for a walk, हमें घूमने के लिए चलना
चाहिए इन्वर्टेड कॉमास आप हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ गए? He suggested to me that we should go for a walk. She said to me, let us was tea. तो रिपोर्टिंग वर्ब लेट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। लेट अस वॉच टीवी, हम टीवी देखेंगे। अब हम टीवी देखेंगे, देखना चाहिए हमें टीवी। ये एक सजेशन दिया है, एक प्रस्ताव रखा है, एक सजेशन दिया है। तो हम इस तरह के वाक्य को पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। विच वन सेंटेंस इज वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थ्री टाइप में से कौन सा दिया गया है, ये आप सबसे पहले इसको आप क्लियर करेंगे। Try to make understand. You have to identify first. You have to identify the tense which is given of the three condition. सुझाव का है तो हम किसे जोड़ेंगे? that से। कनेक्टिव क्या होगा? that। पहली बात PHT that। कनेक्ट हुआ। दूसरा क्रिया से पहले before verb, before main verb, first form of the verb। before हम किसको स्थान देंगे? should को स्थान देंगे। should माने चाहिए, should माने चाहिए। तो let us was tea, क्या वाक्य बनेगा? she suggested to me, suggested to me, that से जोड़ो उसको, इंडेक्स स्पीच है। that मी है, वी कर दो, वी शुड वॉच। ये जैसे लेट अस वॉच टीवी नाउ, नाउ और आगे आ गया कि हम वी लेट अस वॉच टीवी नाउ। अब नाउ तो किस में बदलेंगे आप? ये ध्यान रखो। देन नाउ को बदलते हैं हम THN देन। तो शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड वॉच टीवी देन। Next, condition number 2. The principal said to the servant, comma, inverted comma, let him go। अब जब सेकंड जो कंडीशन आती है उसमें हम वाक्य को दैट से नहीं जोड़ेंगे। कनेक्टिव विल बी नॉट दैट, यूज कनेक्टिव टू। कनेक्टिव क्या हुआ? टू। लेट, टू लेट। हाँ, द प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल ये किस टाइप का सेंटेंस है आपको जज करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई। द सर्वेंट सेड लाइक दैट हिम गो, इसका मतलब क्या है? ये सजेशन है, प्रस्ताव है? नो, ये है कि ऑर्डर।
हमेशा प्रिंसिपल के द्वारा सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाता है टू गिव में, ठीक है, टू गिव ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बस एक सेंटेंस ये लास्ट है, बस फिर प्रिंसिपल ऑर्डर द सर्वेंट, टू नहीं आएगा, ऑर्डर द सर्वेंट टू लेट हिम गो, लेट यूं कहो, लेट हिम गो, उससे जाने दो, टू लेट हिम गो, टू लेट से जोड़ दें क्योंकि वाक्य क्या है, प्रेरणा को हो, अलाउ का हो, ये वाक्य है, ये रिक्वेस्ट हो, अलाउ हो, इस तरह के वाक्य हो तो हम उनको टू लेट से जोड़ देते हैं और हम इस प्रकार से इसको बना देते हैं। अब छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी थोड़ा ध्यान दें, आपके पंक्चुएशन आता है कई बार, इसमें आ जाता है द प्रिंसिपल सेड लेट हिम गो, छोटा सा वाक्य आ जाता है। अब इसको पंक्चुएट करना पड़ता है, 8th में 7th क्लास में इस प्रकार का वाक्य आ जाता है, तो पंक्चुएट क्या लगेगा मोड़ते, छोटी क्लास के बच्चे भी साथ साथ देखेंगे तो वो बड़ी क्लास तक प्रिपेयर कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमने लेट का लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नॉट ए लिटिल हार्डर है, ए लिटिल डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अगले एपिसोड में पूरी तरह क्लियर कर दूंगा इसको। अब तो टाइम हो रहा है ज्यादा थोड़ा, तो शॉर्ट वीडियो है ये, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या पंक्चुएट करना आपको, जैसे आपने देखा इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य, ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हम कोमा लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, तो पहचानो ये रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा लगा दो। इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा से शुरू होगा वाक्य, तो इन्वर्टेड, छोटी क्लास के बच्चे इन्वर्ट, ध्यान दो, इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे हम, ये देखो फुल स्टॉप, जहां फुल स्टॉप नहीं है फुल स्टॉप लगाइए और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिए, लेकिन फिर भी इसमें देखिए सम ए मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, find out the mistake, which way inverted commas, the sentence start with capital letter, यहाँ L का है, छोटा L, small, no, it is incorrect, correct it, जी correct। Okay, follow my channel. I'll make you clear every topic, everything in grammar. Follow my channel.